लग रहा है भाई कि ये जो परवरिश जैसा कूल स्क्रिप्ट है वो आपने लिखा है, अब मुझे समझ आ रही है। वाइट कुर्ता, जीन्स एंड रेड, वो आई एम रियली लाइकिंग इट, माशाल्लाह। सो कैसी हैं आप? एंजॉइंग द सक्सेस ऑफ परवरिश? सोचा था इतना मशहूर हो जाएगा, इतना मोहब्बत किया जाएगा इस स्क्रिप्ट को? Still processing with it. Seriously, अब तो आदत हो जानी चाहिए। नहीं, because there are still a lot more things to come. I know. A So lot you're of scared? You're worried? I'm not scared. I'm just curious as to how the audience will look at it. उसको कैसे लिया जाएगा, उसके बारे में क्या conversations होंगे, क्योंकि बहुत सारी conversations जो अभी तक सामने आई हैं, some of them were very unexpected for me. Like I didn't know लोग माया से इतना relate कर जाएंगे. Like I've actually received messages, I've seen comments where people have actually said that it happened with them. They were this, like मैंने, yes, this came from my own observation as well. मैंने भी लाइफ में देखा था, but मुझे नहीं पता था कि ये केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं इस वक्त in the society. वो भी 2025 में आप ये सोच रही हैं? Yeah, कि like women are actually reaching me out on Instagram. It's there on their comments and everyone and everything, and they're telling कि ये हुआ है, this manipulation has happened with them, that they were promised कि उनकी शादी के बाद पढ़ाई करा दी जाएगी और नहीं हुई. Never happened. वो डॉक्टर बहू का तो बहुत ही फेमस ये कॉन्सेप्ट है. Yeah, so वो तो इसलिए to me a lot of things were very unexpected, a lot of things were expected, but और क्या unexpected था? Unexpected there were a lot of things, जैसे frankly वो जो हमने तिब्बत स्नो वगैरह जो पीछे रखा गया था, वो एक जो that detailing, वो कहीं ना कहीं, हाँ, and I had a teacher, Sir Zain, back then. I really miss him right now. He always used to say कि never underestimate your audience. Yes. Never think कि ये audience नहीं देखेगी, वो तो audience को पता भी नहीं चलेगा, उनको सब पता चलता है. And this actually got proven कि वो एक तिब्बत स्नो भी पीछे रखा हुआ. People saw कि अच्छा ये तिब्बत स्नो रखा गया. Like okay fine, audience देखती है. So अपना बताएं, आपने कहाँ से schooling है? कराची से belong करती हैं आप? Okay. I've been from Karachi. Schooling, अगर मैं सिर्फ end की higher studies की बात करूँ, I did my MBA from CBM. Oh, you did your MBA from CBM? Yeah, and during that I had joined NAPA. मैं NAPA join कर लिया था. I started to take my training as a theatre artist. Active बनना चाह रही थी आप? मैं सिर्फ खुद को explore करने गई थी. तो MBA करते करते नापा पे कैसे चली गई? I was an intermediate and I wanted to explore this. I always knew that I know I'm somehow connected to stories. मुझे मेरे घर में भी बचपन में बात बोली जाती थी, किरण कहानी बाज है, कि लाइक वो एक इतना सा इंसिडेंट होता था, बट व्हेन आई यूज्ड टू टेल इट टू माय पेरेंट्स और माय ग्रैंड पेरेंट्स और स्टफ, सो इट यूज्ड टू बिकम सच बिगर. सो वो तब से मुझे कहा जाता था कि किरण एक कहानी बाज है. सो आई न्यू दैट इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू स्टोरीज, बट व्हाट एग्जैक्टली इज इट, आई डिडंट नो दैट. तो आई वॉज एन इंटरमीडिएट. जब मैंने पहली दफ़ा नापा का एड देखा था और मैंने अपनी फैमिली से इंटरेस्ट शो किया दैट आई वांट टू गो फॉर दिस, बट माय फैमिली दे कीन ऑन finishing your education first. ठीक है, so मेरी फैमिली का ये था कि आपने जो करना है आप करो, but you need to have a degree first. And by degree they didn't mean the bachelor's, by degree they meant masters. So masters is considered a minimum education in our family. Wow. कि masters किया हुआ है तो masters, it's like I really think it's a good idea because the more educated and learned our writers are, I think the हमारा content उतना बेहतर. It helps you a lot. Yes. Sorry, मेरा ये ख्याल. Yeah, it helps you a lot. A lot of my writing comes out of my experiences in the university, in there, in here. You know, अब आप बता रही हैं कि आपने MBA किया, तो अब मुझे like it's like a puzzle जो मेरे टक 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 बैठ रहा है कि oh now I understand कि आप कहाँ से आ रही हो और आपकी understanding क्यों इतनी ज़्यादा solid है of your characters and the storyline, because आप कुछ चीज़ें experience करके आई हैं. I think so maybe. So then then I enrolled into masters. Parents के कहने पर BBA किया. Then I enrolled into masters, लेकिन तब तक मेरी बस हो चुकी थी. मैं ये पूछने वाली थी क्योंकि MBA करना बड़ा रिग्रेस चीज़ होती है. इतने आप अगर आपको इंटरेस्ट नहीं हो तो मुश्किल है फिर. हाँ, मैं तो I had even started doing internships during my bachelor's. कहाँ, प्रोडक्शन हाउसेज में? नहीं, corporate setups. I used to do internships. फिर मैंने जॉब भी बीच में bachelor's ख़त्म करते ही मैंने जॉब शुरू की. And it was during those days that I realized कि मैं नहीं जी सकती, ये नहीं होगा. सो दैट इज़ व्हेन फिर मुझे समहाउ नापा का ख्याल फिर आया, बिकॉज अच्छा टिल दैट टाइम आई डिडंट नो मुझे क्या करना है. मैं लॉस्ट हो चुकी थी, ना खुश थी. हाँ, मैंने एक प्रोडक्शन हाउस होता था शशके फिल्म्स. आई स्टिल लव दोज पीपल बिकॉज दे वर द फर्स्ट पीपल हु एक्चुअली इनकरेज्ड मी कि मैं जिस तरफ जाना चाहती हूँ जाऊँ. आई शुड टेक द रिस्क. सो आई डिड इंटर्नशिप उधर की, फोटोग्राफी सीखने की कोशिश की, बहुत कुछ किया. एंड देन आई रियलाइज इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा. तो उसका एक पार्ट था कि मैं नापा आ गई.
just for the exploration. ठीक है. It turned out कि हाँ नापा ही आना था, नापा में ही रहना था, in the sense कि वो चीज़ इंटेलेक्चुअली चैलेंजेस मिलने लग गए ना, इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस कि कहानी है तो कहानी पे किरदारों पे बहस हो रही है, तो टीचर आगे से अब आप हम स्टूडेंट्स को ये लगेगा हमने कैरेक्टर को डिकोड कर लिया, अब वो टीचर आगे से कोई ऐसी बात बोल देंगे कि आप 2 मिनट को अच्छा ये भी है फिर वो नई तरह से बहस शुरू हो जाएगी. सो अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, ऑफ ह्यूमंस, of realizing that people are much more than what they may appear to us. Yeah, true. A character, जैसे मैंने तो through characters ही सीखा कि a character that might apparently look negative to us is not necessarily negative. Is not necessarily someone जो कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट में कर रहे हैं. हाँ, हम इसको ये बोल सकते हैं कि उसके लिए जो अपना इंटरेस्ट है वो शायद हमारे इंटरेस्ट से क्लैश कर रहा है. It's fairly possible, but you can't give a verdict that person is coming from bad intentions. And I think only writers can say that. Could be. क्योंकि उनको अपने कैरेक्टर्स लिखते होते हैं ना, और उन्हें जस्टिफाई करना होता है. नहीं, लेकिन भाई तू चोरी कर रहा है, मर्डर कर रहा है, कैश कैसे हो रहा है? Sorry, I couldn't control. But you look at it from the chores perspective. Yeah, see, that's what I. If you have to play, this came from acting. हमें हमारे teachers थे, he always used to say कि if you're playing a murderer, now you're a murderer. Whatever others are thinking, how are you looking at yourself? So even a murderer has the justifications. As I said, only a writer can say and think like that. मैं नहीं कर सकती. Okay, moving on. फिर आपने graduate कर लिया नापा से, and आपने मैंने graduate कर लिया. I started working by me. Sorry, मैंने आपकी बात काट दी. नहीं, आप बोलिए, आपका ही जर्नी है. तो मैंने graduate कर लिया. Back in 2017 का end, 18 का start. I obviously met मीसम भाई वहीं पर ही, and somehow universe conspires and we started. Universe conspires and after universe मीसम भाई को सारा credit जाता है इसका. We started working together a lot. कि like on theatre. ठीक है. हम लोग he used to, मैंने उनके साथ as an actor काम किया and I'm very thankful कि उन्होंने मुझे वो chances दिए, वो growth दी. तो हमने पहले वहाँ पर काम किया, फिर उन्होंने मीसम भाई हैज़ बेसिकली री-एस्टैब्लिश, जो पूरी री-एस्टैब्लिश हुई है आर्ट्स काउंसिल की थिएटर अकेडमी, दैट वाज डन बाय मीसम भाई. तो वी वर देयर इन दैट प्रोसेस, आई वाज देयर विद हिम इन दैट प्रोसेस. मीसम भाई ने पूरा फेस्टिवल क्यूरेट किया आर्ट्स काउंसिल के लिए KTF 2020 में. आई वाज देयर इन दैट विद हिम. सो आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट विद हिम and I used to enjoy, and I still do enjoy working with him, because the vision, the perspective that person has, like इतने साल बाद भी ही स्टिल दैट टीचर कि आपको ये लगेगा कि मैंने तो कैरेक्टर डिकोड कर लिया और वो आएंगे कुछ एक बात बोलेंगे और आप ऐसे हो जाओगे कि ओके एंड आपको 2 मिनट को लगेगा कि आई एम बैक टू माय फर्स्ट ईयर. सो इसलिए आई थिंक आई लव वर्किंग विद हिम. ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ वेरी इनकरेजिंग. ही इज़ बेसिकली उस्ताद. जो एक उस्ताद की, हाँ, जो एक उस्ताद की एक डेफिनेशन होती है ना, समवन हु इज एनकरेजिंग यू, समवन हु इज पुशिंग यू टू बी बेटर, समवन हु इज देयर बेस्ट इन यू, यस, एंड हु इज आल्सो देयर विद यू इवन इफ थिंग्स गो रॉन्ग. ट्रू. ऐसा नहीं होगा कि टिल द टाइम आई एम डूइंग द गुड वर्क ही वुड बी अराउंड मी कि हाँ ये कहना अच्छा काम करिए. ही वुड इवन बी देयर टू सपोर्ट मी, टू हेल्प मी व्हेन ही वुड, इट माइट लुक लाइक कि मुझसे नहीं हो रहा. सो व्हिच इज व्हाई. ठीक है, तो फिर आपने टीच करना शुरू फिर मैंने टीच करना शुरू किया आर्ट्स काउंसिल में. कुछ ऐसा मैंने टीच किया, मुझे लगता है मैंने बच्चों की बदुआएं ली. क्यों, आप बहुत सख्त टीचर थी? बहुत सख्त टीचर थी. फर्स्ट आई वोंट से बहुत सख्त, बट या फेयरली सख्त. तो 2 साल टीच किया? कितने साल भर टीच किया लाइक एज अ एम्प्लॉय, एंड देन आई बिकेम अ विजिटिंग फैकल्टी. ओके, और फिर क्या करी थी आप? मैं विजिटिंग फैकल्टी थी, बीच में थिएटर्स करती थी, प्रोडक्शंस करती थी. आई यूज्ड टू, आई बिकॉज देयर वाज नथिंग इन माय लाइफ अदर देन थिएटर. मैं या तो एज एन एक्टर इन्वॉल्व होंगी, या प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व होंगी, या टीचिंग करके इन्वॉल्व होंगी, बट देयर could not be anything else in between. तो फिर राइटिंग की तरफ कैसे आई? Once again मीसम भाई and मोहसिन भाई, मोहसिन अली, the writer. Yeah, I know. So वो मीसम भाई के फ्रेंड है, तो वो उनसे उसी एक दफ़ा मैंने और मोहसिन भाई ने हमने एक थिएटर साथ किया था, तो वहाँ पे हमारी दोस्ती हुई थी. वो भी मीसम भाई की डायरेक्शन में था. So मीसम भाई एंड मोहसिन भाई यूज्ड टू टेल दिस टू मी कि तुम लिखो, राइट. और मैं नहीं लिखती थी, बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू से मैं राइटर नहीं हूँ. एंड दे यूज्ड टू से कि अच्छा कोशिश तो करो. इवन विद बिग बैंग दिस हैपेंड कि सरजिया की डेथ हो गई थी. ओके. सो थिएटर का काफ़ी हद तक द पैराडाइम शिफ्टेड, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन थिंग्स चेंज, व्हेन पीपल लीव, थिंग्स चेंज, इंस्टीट्यूशंस चेंज. When new people come, they come with new